Hello dear students, today we are going to study our 12th standard English syllabus writing skill 3.4 statement of purpose or commonly known as SOP. Students, please remember that it is very important writing skill that will be asked in your exam for 4 marks. So please be alert, and this is a new we can say syllabus new topic that we are going to study, that is SOP. इससे पहले आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, I feel, because in 10th standard this was not there, and in 11th standard also we were not having the SOP. So this is the new topic that today we are going to take, which is totally different from the other topics of writing skill of our 12th standard. So please be concentrate and alert to know how to write the SOP, that is statement of purpose. So before starting, let me tell you what is SOP, that is a statement of purpose. Statement of purpose is a long essay required by the universities abroad and nowadays some of the Indian universities during the application process. As the full form of the SOP, that is statement of purpose, reveals that it's a essay stating the purpose of applying to a particular course in a particular university. It is written in somewhere around 500 to 600 words, and it is written somewhere around 1.5 or 2 pages. This essay type of essay is consist of somewhere around 6 to 7 पैराग्राफ. ये 6 से 7 पैराग्राफ में लिखा जाता है. 400 to 500 या चलो 600 वर्ड्स लिमिट है इसका, और 1.5 और 2 पेजेस में प्रॉपरली लिखा जाता है. ये क्या है? ये हम कोई यूनिवर्सिटी में, जैसे अब्रॉड बाहर के कोई यूनिवर्सिटी में जैसे हम ट्राई करते हैं, तो वहाँ पे जब हम ट्राई करते हैं फॉर गेटिंग अ न्यू एडमिशन इन अ न्यू कोर्सेस, दैट टाइम SOP लिखना पड़ता है. दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, दैट वाई यू वॉन्ट टू टेक द एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, what are your capabilities, which course you are interested in, and why you feel that you are capable of getting the admission in this university. जैसे बाहर के वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ का नाम बताती हूँ. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, डिफरेंट MITs वगैरह आप देखोगे, इतने फेमस यूनिवर्सिटीज़ आर देयर. तो वो यूनिवर्सिटी में किसका मन नहीं करेगा कि मेरा एडमिशन ना हो. 12th कंप्लीशन के बाद कितने लोगों का ड्रीम होगा कि मैं फॉरेन में जाके एडमिशन लूँ एंड गेट द डिग्री फ्रॉम देयर. तो वहाँ पे व्हेन यू आर गोइंग, एंड इवन इन इंडिया ऑल्सो, कहीं बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है और आपको यू फील दैट यू आर कैपेबल ऑफ इट, तो वहाँ पे आपको SOP की ज़रूरत होती है. इट मीन्स यू हैव टू राइट, describe yourself, who you are, why you want to take the admission in that university, what are your capabilities, what are your hobbies, why you feel to get admission in that college, and what are the different things of this college that you are actually inspired and thought to take the admission. तो ये होता है SOP. So this essay is consist of, जो SOP लिखोगे ये essay type रहता है, और वो क्या है, is a gist, it means summary of who you are, who you want to become, and how ready you are to pursue a certain course in an institution. समझ में आ रहा है? द डॉक्यूमेंट सीक्स, जो भी आप लिखते हो, इट इज़ टू अंडरस्टैंड द कैंडिडेट्स लाइफ. तुम कैंडिडेट हो, कैंडिडेट मतलब होता है तुम जो स्टूडेंट हो, तुम्हारे लाइफ के ऊपर लिखा हुआ रहना चाहिए. वो जो टॉपिक आप द SOP that you are writing, it should be very motivational, okay, for the chosen career path, whatever the path, if you want to do engineering, fashion designing, any courses if you want to do, which can focus on your goal. ऐसा लिखो कि समझ में आए पढ़ने वाले को कि you are focused to do what in your life. Hence, you should discuss the past incidents that have influenced your career path in a specific domain where you aspire to grow by joining this college or a course. आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो
एनी ऑफ द पास्ट इंसिडेंट जिससे आप मोटिवेट हुए टू डू समथिंग इन योर लाइफ, टू बिकम समथिंग, एंड दैट्स वाई यू वांट टू टेक द एडमिशन इन दैट कॉलेज। ऐसा करके आप उसमें रिप्रेजेंट करो कि क्यों तुमको वो कोर्स करना है और वो कॉलेज क्यों ज्वाइन करना है। सो मस्ट रिमेंबर SOP, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में फर्स्ट पैराग्राफ सेल्फ इंट्रोडक्शन का रहता है, जिसमें आप अपने फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स एंड हाउ दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, दैट यू हैव टू मेंशन। सेकेंड एंड थर्ड पैरा में याद रखना है स्टूडेंट, आपको क्या लिखना है, आपका एकेडमिक करियर, दैट मीन्स 12th स्टैंडर्ड। आपका 12th कंप्लीट हो जाएगा तभी आप कोई बड़े कॉलेज में ट्राई कर सकते हो। सो दैट एकेडमिक करियर के बारे में आपको यू हैव टू राइट ऑन इट। ओके, 12th स्टैंडर्ड में इन विच सब्जेक्ट यू आर वेरी गुड, वाई यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और कौन सा कोर्स उस कॉलेज में करने वाले हो एडमिशन लेने के बाद। ये सारे थिंग्स आप अपने एक्सपीरियंसेस रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट SOP में फोर्थ जो पैरा आप लिखोगे उसमें वाई दिस कोर्स, आप ज़रूर कोई ना कोई कोर्स के लिए अप्लाई करोगे। फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और एनी ऑफ द कोर्सेस, मैनेजमेंट, फाइनेंस, एनी ऑफ द कोर्सेज के लिए, जैसे आप या फिर आप बहुत इंटरेस्टेड हो मॉडलिंग वगैरह में तो वो कोर्स कुछ करना चाहते हो, तो वाई यू रिक्वायर और नीड दिस कोर्स, वो आएगा आपका फोर्थ पैरा में। फिफ्थ पैरा में हाउ यू आर गोइंग टू मेक दैट करियर एज अ प्रोफेशन इन योर लाइफ, दैट यू हैव टू राइट। इट मीन्स हाउ मच यू आर पैशनेट अबाउट योर टारगेट इन योर लाइफ, वो लिखना है आपको। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ पैरा होगा कि क्यों तुम यही यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स वाई यू रिक्वायर टू टेक द एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी, वो आपका सिक्स्थ पैरा हो जाएगा। और क्लोजिंग पैराग्राफ में मस्ट रिमेंबर, इतना याद रखना कि यू हैव टू रिप्रेजेंट योर गुड क्वालिटीज, नॉट योर बैड क्वालिटीज। इज दैट क्लियर? आप एडमिशन मांग रहे हो, भीख नहीं मांग रहे हो, तो आपको अपने गुड डीड्स, अच्छे वर्क, दैट यू हैव टू मेंशन, एंड नेवर राइट दैट प्लीज फीस कम कर दो एंड ऑल। ये सब बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है कि आप कितने स्ट्रांग हो टू टेक, और डिटर्मिन्ड हो, कितने साहसी हो कि तुम यहाँ पे कॉलेज में आके अच्छा पढ़ के यू आर गोइंग टू गेट अ गुड परसेंटेज। सो दैट इट इज। So before starting our lecture, let's see what we are going to do in this lecture today, which is listed in this slide properly. Firstly, we will see the short introduction of SOP, that is statement of purpose. Okay. Secondly, we will see the textbook, what our textbook says, that is what is a statement of purpose. Textbook में दिया है, हम पहले उस को पूरा अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट आवर टेक्स्ट बुक सेज। थर्डली, वी आर गोइंग टू डू फॉर्मेट ऑफ SOP, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। कैसे, कितना पैराग्राफ में लिखना है अभी फ़िलहाल मैंने बता दिया है, बट चैप्टर में आपके कैसे दिया है वैसे का वैसे ही हम सीखेंगे एंड ट्राई टू राइट। और लास्टली, वी आर गोइंग टू डू टुडे इन दिस लेक्चर इज अ सैम्पल वन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। हम एक सैम्पल भी देखेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक में एज ए एग्जाम्पल दिया है, दैट वी विल सी हाउ टू राइट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ SOP, that is statement of purpose. Statement of purpose is an application or an admission essay written by a candidate while applying for a course in an foreign universities or college. Students, ये exactly होता क्या है? Well students, I will teach you. SOP जो होता है ना, ये एक application होता है, is a application, okay? और ये जो application है, ये आप कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को लिखते हो टू गेट एडमिशन इन दैट यूनिवर्सिटी और कॉलेज। सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक ऐसे जैसे होता है, ऐसे राइटिंग तो सबको पता है, और वो ऐसे राइटिंग आप खुद के बारे में, आपके एम्स, एम्बिशंस, इंटरेस्ट के बारे में बताकर उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को कन्विंस करने को कोशिश करते हो कि आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो। SOP में आप आपकी जर्नी ऑफ लाइफ शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हुए आपके क्वालिटीज़ पर फोकस करते हो, और आप आपके
डिज़ायर्ड कोर्स जो करना चाहते हो और जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो उसमें मिलने के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल रहता है. सो इन योर एप्लीकेशन टू द यूनिवर्सिटी इज़ द SOP. जो SOP आप लिखते हो वो एक एप्लीकेशन है ऐसे की तरह जिसमें आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लिखते हो. तुमको लगेगा कि कौन से कॉलेजेस में एडमिशन के लिए लिखा जाता है. जनरली स्टूडेंट्स हम फॉरेन कंट्रीज़ में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए हम ये SOP लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटीज़, इसमें बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होगा कि मैं जाके फॉरेन कंट्रीज़ में फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ और एंड आई विल गेट द डिग्री फ्रॉम देयर. सो वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए SOP लिखा जाता है. यस, SOP क्या होता है? SOP आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा आपके बैकग्राउंड, कहाँ से आप आते हो, आपकी क्वालिटीज़, इनेट क्वालिटीज़, आप में कुछ स्किल है, स्पेशलिटीज़ क्या है, आपकी लाइकिंग्स क्या है, आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपकी एम्स क्या है लाइफ के लिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बहुत मैटर करता है व्हेन यू आर राइटिंग SOP. तो SOP में ये सारे कंटेंट्स आप डालने वाले हो. SOP ऐसा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आप यूनिवर्सिटी को एडमिशन फॉर्म के साथ सबमिट करते हो, विच एक्सप्लेन्स अ ब्रीफ रीजन दैट वाई यू वांट टू टेक or join this university or college or get admission in this particular course in this particular university or college. समझ में आ रहा है? किसी कॉलेज में स्पेशली फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन फॉर्म के साथ आप SOP प्रेजेंट करते हो जिसमें आप अपने बैकग्राउंड, अपनी इनेट क्वालिटीज, स्किल्स, स्पेशलिटीज, लाइकिंग्स, इंटरेस्ट, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में प्रेजेंट करते हो, दैट हु यू आर. आप सोचते होगे मैडम व्हेन एंड वेयर SOPs आर यूज्ड, कब और कहाँ हम ये अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. सो प्रैक्टिकली आई हैड सेड, मैंने अभी भी बताया कि फॉरेन यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस में एडमिशन लेने के टाइम हम SOP सबमिट करते हैं फॉर गाइडिंग द कोर्स ऑफ PG. कितने लोग को पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करना होगा, कितने लोग को डॉक्टरेट डिग्रीज लेनी होगी, इंजीनियरिंग डिग्री लेनी होगी फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी. वो लेवल का कोर्स करने के लिए उस वक्त you have to write one application to that particular university or college जिसमें आप अपने हुनर, काबिलियत कि आप कितने ब्रेव हो, इंटेलिजेंट हो, आप कितने स्मार्ट हो फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स, ये आप मेंशन करते हो, तो वो है आपका SOP. सो दैट योर एप्लीकेशन गेट एक्सेप्टेड. और अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हो गया then you will get the admission in the foreign university. So please must remember, because you are in 12th standard, आपके English exam question कुछ इस तरह होंगे कि SOP can be asked to you in such a way in exam like you are applying in a foreign university or college. USA और UK का कोई कॉलेज दिया रहेगा और उसमें आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो. मस्ट रिमेंबर, आपका 12th स्टैंडर्ड होने के बाद आप लोग FY में जाओगे, तो वो होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो 3 साल का रहता है और उसके बाद आपका क्या होगा कि आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा. तो आप अगर फॉरेन कंट्री से इफ़ यू वांट टू डू द ग्रेजुएशन, दैट टाइम स्टूडेंट यू हैव टू सबमिट द SOP. So in exam the SOP can be asked that you are applying for any foreign university like USA or UK for any undergraduate course. जिसका एग्जाम्पल मैं अभी लेक्चर के लास्ट में पार्ट में आपको एक सैम्पल के रूप में रिप्रेजेंट करूँगी. सो ये हमारा टॉपिक फर्स्ट इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है और हम जल्दी से पहुंचते हैं अपने पेज नंबर 154. प्लीज़ टर्न द पेज नंबर 154 वेयर वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. A statement of purpose SOP is an application made to a university to seek admission to a particular course. As I had taught you earlier, ये SOP तब लिखते हैं जब हमको दूसरे बड़े यूनिवर्सिटी स्पेशली अब्रॉड फॉरेन कंट्री में जाके एडमिशन लेना रहता है कोई कोर्स में, तब हम SOP लिखते हैं. What is SOP? It is an essay.
ऐसे टाइप रहता है विच डिस्क्राइब्स यू एज अ पर्सन, योर एम्स एंड एम्बिशन। उसमें आप इंट्रोडक्शन में और अपने बारे में यू गिव योर इंफॉर्मेशन। इज एन एसे विच डिस्क्राइब्स यू एज अ पर्सन, योर एम्स एंड एम्बिशन। ये एक ऐसे की तरह होता है जिसमें आप अपनी गुड क्वालिटीज़, आपका थॉट, आपका एम्स, आपका टारगेट, आपका गोल्स जो लाइफ के लिए, दैट यू यूज टू राइट। इट स्पीक्स अबाउट योर जर्नी ऑफ लाइफ। ये बताता है आपके लाइफ का जर्नी, कि आप कहाँ से क्या पढ़ के आए हो और आगे आपको क्या करना है, एंड द क्वालिटीज़ यू हैव नर्चर्ड इन द प्रोसेस। और एक चीज़ बात इसमें आप लिखते हो जिसमें आप प्रेजेंट करते हो कि आप में कितनी अच्छी क्वालिटीज़ है to pursue this course. The scorecard or the transcript gives your academic achievement. उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलता है, और अगर आपका मार्क्स बराबर इफ ऑन दैट यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स, और वो मार्क्स आपका एकेडमिक अचीवमेंट में हेल्पफुल रहता है, दैट यू विल गेट द एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। इट इज ऑब्जेक्टिव दैट एसओपी गिव्स एन आइडिया अबाउट योर इननेट क्वालिटीज एंड इज सब्जेक्टिव इन नेचर। याद रखना है, एसओपी में आप अपने बारे में लिखते हो, योर इननेट क्वालिटीज, आप में क्या अच्छी क्वालिटीज़ है, काबिलियत है, आप वो चीज़ एसओपी में डालते हो। सो बेसिकली वी कैन से ये सब्जेक्टिव है नेचर में, इट मीन्स इट डिस्क्राइब्स यू हु यू आर। द एसओपी गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू शो द स्पेशल क्वालिटीज विच मेक यू डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। हर पर्सन का एसओपी डिफरेंट रहता है, लाइक वी ऑल ह्यूमन बींग आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम सब ह्यूमन बींग, हमारे लाइक्स, हमारे टेस्ट, हमारे मोटिव्स, हमारे गोल, हमारे टारगेट लाइफ के सबके अलग अलग है। तो एसओपी इज ऑफकोर्स इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सन। हर एक का एसओपी अलग रहता है, सबका अलग अलग क्वालिटीज़ है, तो सबके अलग अलग थॉट्स है। इट एक्सप्लेन्स वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन द कोर्स, वॉट इज़ योर लाइकिंग, हाउ यू हैव डेवलप्ड योर लाइकिंग, ये सब डिस्क्राइब करता है। ये भी एक्सप्लेन करता है दैट वाई यू वांट टू ज्वाइन। जब आप एसओपी लिखते हो तो उसमें आप रिप्रेजेंट करते हो कि मैं इन क्वालिटीज़ के साथ इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, ये कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ, दिस इज़ माई लाइकिंग एंड यू हैव डेवलप्ड योर लाइकिंग। और जो भी चीज़ में आपका लाइकिंग्स है, दैट इट इज़ डेवलप्ड, दैट यू आर गोइंग टू पुट फोर्थ इन द statement of purpose. It justifies how you will be able to achieve your aim. ये रिप्रेजेंट भी करता है कि कैसे तुम अपने आप के अचीवमेंट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तुम्हारा टारगेट क्या है और कैसे तुम उसको अचीव करना चाहते हो। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई यू हैव सिलेक्टेड अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। इसमें आप ये भी लिखते हो कि क्यों ये यूनिवर्सिटी में ही मुझे एडमिशन लेना है, वाई ओनली दिस इन द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आई वॉन्ट टू टेक द एडमिशन। सो व्हाट्स द मेन रीजन बिहाइंड, मतलब वो यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू राइट। द एसओपी इज अ गेटवे टू योर करियर एज the admission committee judges you or screens the application on the basis of the SOPs received. Hence, it is very important document. याद रखना SOP के वजह से ही you are going to get the admission in the university. In abroad, foreign country में, बड़े colleges में, if you want to get the admission, you have to write the SOP in such a way that it should be represent that real you, your qualities, and if your SOPs are very magnificent, बहुत अच्छा लिखा हुआ रहेगा, तब जाके आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलता है। सो मस्ट रिमेंबर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जो भी लिखना, प्रॉपरली लिखना, विच जस्टिफाइज हु यू आर। सेकेंड पैरा ऑफ पेज नंबर 154। द SOPs किस लिए लिखे जाते हैं, मैंने अभी आपको सिखाया इंट्रोडक्शन में। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स लिखते हैं, जैसे आप 12th के बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करोगे, लाइक समबडी इज डूइंग इंजीनियरिंग, समबडी इज डूइंग मेडिकल कोर्स, गोइंग इन द मेडिकल कोर्स, समबडी इज गोइंग इन द BCom, BSc, सो मेनी कोर्सेज आ जाए, फैशन डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, तो वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। और उसके बाद ग्रेजुएट होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, देन डॉक्टरेट डिग्री के लिए आप अप्लाई करते हो। तो सब टाइम जब जब आप लिखोगे आपके SOPs डिफरेंट होते जाएंगे, ठीक है। द SOPs डिफर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आप जैसे ग्रेजुएशन करके आप अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करके अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हो, तो आपका SOP उस तरीके से डिफरेंट होता जाएगा। मतलब आपका और एजुकेशन क्वालिटीज इंक्रीज होगा, और आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे कि SOP में कि आप कितने क्वालिफाइड हो। द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच एन SOP इज रिटन इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। याद रखना, जितने वर्ड्स हम यूज करते हैं वो वर्ड्स हर यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट होता है। मतलब कहीं पे 500 वर्ड्स
वर्ड्स रहता है लिमिट, कहीं पर 600 वर्ड्स रहता है। तो वो आप देखो किस यूनिवर्सिटीज़ में कितना रहता है, तो मिनिमम और मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया 500 to 600 के बीच का वर्ड्स लिमिट है, वी हैव टू यूज इट। एट दिस लेवल व्हेन यू वुड पास योर 12th एग्जामिनेशन एंड राइट पर्सनल स्टेटमेंट्स टू यूनिवर्सिटीज फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स, यू शुड फॉलो द फॉर्मेट गिवन बिलो। तो चलो हम देखते हैं कि अगर हम लोगों को 12th पास करके कोई फॉरेन कंट्री में अब्रॉड जाके एडमिशन लेना है तो किस टाइप का एसओपी हमको लिखना है, दैट फॉर्मेट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इन दिस लेक्चर। सो नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ द एसओपी। द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस शुड बी रिटन इन अराउंड 500 वर्ड्स टेंटिवली इन 5 to 6 पैराग्राफ। यहाँ पे याद रखना 12th पास करने के बाद किस टाइप का एसओपी लिखना है, आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, कितने पैराग्राफ्स में लिखना है, दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, 500 वर्ड्स में याद रखा, याद है ना आपको, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर से मैं बता रही हूँ 500 to 600 वर्ड्स में लिखना है और कम से कम आपका 5 से 6 पैराग्राफ यहाँ पे बनना चाहिए। So let's see what we have to introduce in the first paragraph. We have to begin with your introduction. आप अपने बारे में रिप्रेजेंट करोगे who you are और आपके इंटरेस्ट के बारे में रिप्रेजेंट करोगे, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपकी किस चीज़ में इंटरेस्ट है। देन यू विल टॉक अबाउट योर पर्सनल बैकग्राउंड, अपने फैमिली के बारे में, अपने सिस्टर ब्रदर पेरेंट्स के बारे में, वेयर दे आर वर्किंग, व्हाट आर देयर इंटरेस्ट, व्हाट दे आर डूइंग। तो ये सारा थिंग्स आपको रिप्रेजेंट करना है। और फर्स्ट पैरा में और भी कुछ करना है, योर एम्स ऑफ लाइफ, मतलब तुम कर बनना क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, दैट यू हैव टू प्रेजेंट। में ही आपको फर्स्ट पैरा में ही आपको योर मेंटल मेकअप टूवर्ड्स द कोर्स, मतलब तुम कितना स्ट्रांगली कनेक्टेड हो टू दिस पर्टिकुलर कोर्स विच यू आर गोइंग टू डू फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, दैट यू हैव टू मेंशन ओवर हियर। एंड ऑल्सो यू हैव टू मेंशन हाउ योर इंटरेस्ट अराउज टूवर्ड्स द कोर्स, मतलब हाउ मच यू आर क्यूरियस, हाउ मच यू आर रियली वॉन्ट टू डू दिस कोर्स, मतलब कितना तुम इसके लिए एक्साइटेड हो, यू वॉन्ट टू डू, हाउ मच दिस पर्टिकुलर कोर्स is going to bring the change in your life, that you have to present in the first paragraph. चलो अब नेक्स्ट हम मूव फॉरवर्ड करते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। It should speak about why you wish to join this specific program, course, your area of interest. Okay, why you want to join this specific course, तुम्हारा मेन टारगेट क्या है, why you want to join this course। और अपना एकेडमिक इंफॉर्मेशन तुम देना मत भूलना, लाइक 10th स्टैंडर्ड, हाउ मच परसेंटेज यू गॉट, इन विच सब्जेक्ट यू गॉट how much marks, all these things it will come. Okay, which subject you are very good in, और ट्राई करो SOP में सिर्फ अपनी गुड क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, नॉट योर बैड क्वालिटीज। सो इन SOP ऑल द गुड क्वालिटीज आर गोइंग टू कम इन दिस SOP, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ओके, अपने स्कूल कॉलेज और 12th स्टैंडर्ड भी आपका हो गया रहेगा, तो 12th स्टैंडर्ड में कितना परसेंटेज आया, हाउ मच इन विच सब्जेक्ट यू स्कोर वेरी गुड, ऑल दिस थिंग्स यू आर गोइंग टू राइट। एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मस्ट रिमेंबर तुम्हारा टारगेट क्या है, तुमको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, विच सब्जेक्ट यू लाइक द मोस्ट, ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू कम इन द SOP सेकेंड पैराग्राफ। नाउ मूव टू द थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में इफ यू वुड सी स्टूडेंट, in the third paragraph you have to write about your qualities that would be helpful or suitable for this career goal or objective। थर्ड पैराग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करने का स्टूडेंट दैट स्पेसिफाई वाई यू वॉन्ट टू परस्यू दिस कोर्स, यही क्यों कोर्स तुमको पसंद है। अभी मेरे को इंजीनियरिंग के लिए जाने का है, मेरे को फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के लिए जाने का है, तो वाई आई वॉन्ट टू गो इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, वाई नॉट अदर। ठीक है, सो इन थर्ड पैराग्राफ यू हैव टू मेंशन योर एम, स्किल्स एंड इंटरेस्ट। ओके, दैट व्हाट्स योर एम इन लाइफ, तुमने क्या सोच रखा है, दैट व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू आर हैविंग, इननेट क्वालिटीज कौन कौन सी है, एंड वाई यू वांट टू परस्यू दिस कोर्स, यही कोर्स क्यों आगे करना चाहते हो। ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू राइट इन द थर्ड पैराग्राफ। So third paragraph must remember it talks about the career goal और objective। next और भी उसमें आपको लिखने का है कि तुम्हारा hobbies और extra curricular activities, means how much you are not only good in studies but also in the other curricular activities also। क्या speciality है आपका, that you have to mention। okay, and would be helpful in strengthening your goals, whatever the course that you are doing it is going to helpful for your upcoming future। so must remember student, in the third paragraph students discuss the course curriculum,
then your abilities, skills and hobbies that you are fit in that particular course, and explain the skills that you would enhance during the course. All these things are going to come in the third paragraph. Move to the fourth paragraph. Fourth paragraph में students mention the experience in the field of your any internship. आपने कोई internship वगैरह किया है क्या, कोई प्रोजेक्ट किया, या लाइफ में आपको कुछ ऐसा आपके लाइफ में इंसिडेंट हुआ कि उसके बाद ही आपने पूरा चेंज किया अपने लाइफ में कि दैट यू वांट टू बिकम, तो वो इंसिडेंट आपको स्टार्ट कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में भी स्टार्ट कर सकते हो और फोर्थ पैरा में भी लिख सकते हो कि एक दिन कंप्यूटर ख़राब हो गया एंड इट इज़ नॉट वर्किंग एंड आई वांट टू बी वर्क ऑन दैट कंप्यूटर, सो हाउ आई कैन डू, मैं खुद बैठ के उसको ट्राई किया ठीक करने के लिए, एंड इन दिस वे आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द हार्डवेयर कंप्यूटर। तो आप इस तरीके से एक एग्जाम्पल देकर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सेम वे हियर ऑल्सो यू कैन सी, आप कभी इंडस्ट्रियल विजिट पे कॉलेज की तरफ से गए थे और फॉर एग्जांपल कोई ट्रेनिंग था कॉलेज का यू हैड अटेंडेड, कोई एक्सपीरियंस हुआ तुमको कॉलेज में, तो वो थिंग्स आप यहाँ पे फोर्थ पैरा में लिख सकते हो। स्टेट समथिंग दैट मेक्स यू डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर एप्लीकेंट्स, दूसरे एप्लीकेंट से आपको जस्ट डिफरेंट करे ऐसा कुछ इंसिडेंट आपको यहाँ पे पुट फोर्थ करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक तुमने कोई कोर्सेज ज्वाइन किया, लाइक जावा प्रोग्रामिंग कोर्सेज कुछ किया टू मेक गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंप्यूटर लैंग्वेज, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करके यहाँ पे एक एग्जाम्पल के टाइप पे एक शॉर्ट स्टोरी, छोटा सा 2 लाइन 4 लाइन का अपने लाइफ से रिलेटेड यू कैन पुट फोर्थ, सो दैट इट इज़ वेल अंडरस्टूड बाय एवरीवन, दैट स्पेशली द people those who are reading your application that you are more interested in this particular course. Explain your long term plans, और ये भी बताओ कि in future also what I want to do, कि जैसे मैंने जावा सीखा, प्रोग्रामिंग सीखा, तो बताओ कि फ्यूचर में इवन आई वांट टू डू इन दिस फील्ड, मैं ये फील्ड में ही वर्क करना चाहता हूँ, सो इन दिस वे यू हैव टू प्रेजेंट ओवर देयर। जैसे मेडिसिन है, किसी को मेडिसिन वगैरह बहुत पसंद है, तो मतलब हाउ यू आर प्लानिंग इन कमिंग फ्यूचर टू वर्क इन दैट फार्मेसी एंड ऑल, तो वो सब आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपका स्टूडेंट फोर्थ पैराग्राफ में मस्ट रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स आर going to come. So in fourth paragraph you have to write your experience, your career and goals, okay, that how a particular experience in my life changes my career goal. So fifth para, next come to the fifth para, why this university, यही क्यों यूनिवर्सिटी तुमने चूज किया to study, why you selected this particular university to study in this. So in that student specify the features of university that attracts you, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करता है अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, टेल इस वेरी फ्रैंकली, लाइक डिसिप्लिन, लाइक पंक्चुअलिटी, ये सब आप लिख सकते हो कि यहाँ का पंक्चुअलिटी बहुत अच्छा है, यहाँ पे डिसिप्लिन है, सो मेनी यू कैन सी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आर देयर विच इज़ नॉट फाउंड इन द अदर कॉलेजेस। सो ये सब आप क्वालिटीज़ यूनिवर्सिटी उस पर्टिकुलर कॉलेज की स्पेशलिटी आपको लिखना है, सो दैट इट इज़ वेल अंडरस्टूड बाय एवरीवन दैट व्हाई यू वांट टू ज्वाइन इन दिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज। हाउ द एक्सपोजर इन द यूनिवर्सिटी विल हेल्प यू इन योर करियर ग्रोथ, मतलब ये जो यहाँ पे लाइक how the people are getting selected, or how the teachers are teaching in the classroom, or for example how the यूनिवर्सिटी इज़ मेकिंग एफर्ट्स फॉर द चिल्ड्रन टू गेट गुड एजुकेशन, तो ये सब आपको क्वालिटीज़ बताना ही पड़ेगा कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या स्पेशलिटी है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी। सो यू हैव टू मेंशन दैट दिस यूनिवर्सिटी इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर द चिल्ड्रन एंड फ्रॉम द कैंडिडेट, दैट इज़ द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर एवरीवन, तो दैट पर्सपेक्टिव यू हैव टू मेंशन ओवर हियर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज गोइंग टू कम इन द fifth paragraph, okay, so you have to mention why this university, why you want to select this particular university. Next you can see सिक्स्थ इज द लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ, आई वुड से कंक्लूजन में आपको सम अप करना है व्हाट यू हैव रिटन, जो भी लिखा है स्टार्टिंग से, दैट यू हैव टू सम अप, दैट यू वांट टू टेक द एडमिशन, व्हाई यू वांट टू टेक द एडमिशन, व्हाट आर योर क्वालिटीज, व्हाट इज योर करियर गोल, व्हाई यू आर पैशनेट अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स, एंड फाइनली व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। ये सबको आपको कंक्लूड करने के साथ साथ आस्क फॉर एन अपॉर्चुनिटी इन अ वेरी पोलाइट मैनर, मतलब आप रूड वे में नहीं बोलना है, you have to say in a very polite way that why this college you had selected for your career to
join and get the admission over here. Must remember, एक चीज़ याद रखना, तुम एडमिशन मांग रहे हो, कोई भीख नहीं मांग रहे हो, तो कोई भी स्टेटमेंट ऐसा मत लिखना कि प्लीज़ फीस कम कर दो एंड ऑल, कुछ भी नहीं लिखना है आपको। प्रॉपरली यही चीज़ लिखना है दैट दिस कॉलेज इफ़ गिवन द अपॉर्चुनिटी आई विल स्टडी एंड डेफिनेटली गोइंग टू प्रेजेंट डूइंग दिस कोर्स इन माई लाइफ। तो इस तरीके से आप एंड कर सकते हो, बट डोंट आस्क फॉर एनी फाइनेंशियल हेल्प। कोई भी फीस कम करने जैसे स्टेटमेंट आप यूज़ मत करना, वहाँ पे आपका कट हो सकता है पॉइंट्स, यू आर गोइंग टू गेट क्रॉस ओवर देयर, डायरेक्ट कट हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू राइट द SOP, ओके। लास्ट में देखो स्टूडेंट, और एक चीज़ दिया है स्टूडेंट, एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन अबाउट SOP का कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा 154 पेज नंबर का लास्ट पैराग्राफ और 155 का स्टार्टिंग का 2 लाइन में आपको मिल जाएगा स्पेशल क्वालिटीज़ जो SOP में हमको यूज़ करनी है। व्हाट आर द स्पेशल क्वालिटीज दैट वी हैव टू यूज़ इन द SOP? फर्स्ट, यूज़ क्लियर लूसिड लैंग्वेज, एकदम सिंपल क्लियर लैंग्वेज आपको यूज़ करना है, ज़्यादा टफ लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, डोंट मेक स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर, ग्रामर बिल्कुल करेक्ट रखना है, स्पेलिंग्स वॉट एवर यू आर राइटिंग इट शुड बी करेक्ट स्पेलिंग्स। नेक्स्ट, मतलब याद रखो आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बराबर होना चाहिए, ओके। फॉर एग्जामिनेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो यू हैव टू राइट इन सच अ वे दैट स्पेलिंग मिस्टेक्स शुड नॉट हैपन। नेक्स्ट, योर राइटिंग शुड बी कन्विंसिंग, मीन्स यू हैव टू राइट इन सच अ वे दैट द पर्सन हु इज रीडिंग योर SOP, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इज गोइंग टू गिव यू द एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लैंग्वेज, इट शुड बी इन सच अ वे। Is that clear? Next, show determination in your career. It means you have to show that how much you are hardworking, how much you are keen, how much you are interested to join that particular SOP. Next, high your qualities and life experience appropriately. It means whatever your qualities are there, highlight it, okay, represent it कि कितना तुम्हारे में good qualities है, and what are the life experiences that you had learned and how you are going to use in your life. जैसे मैंने एक सिंपल से एग्जांपल दिया कि घर में कंप्यूटर एक दिन रात को ख़राब हो गया, तो कैसे तुमने उसको ठीक किया बिकॉज ऑफ योर स्किल्स एंड दस तुमने अपना वर्क भी कंप्लीट किया। इट मीन्स इट शोज दैट यू आर वेरी मच कीन फॉर हार्डवर्क कंप्यूटर। इन दिस वे इस तरीके का लाइफ एक्सपीरियंस आप एक देख सकते हो, दे सकते हो। नेक्स्ट इज मेक श्योर योर एप्लीकेशन स्टैंड्स आउट फ्रॉम द रेस्ट। इट मीन्स it should be very good that the person who is reading your application is going to give the admission in that particular university. So in this way you have to write, okay. So shall we see one example? So let's start. So let's start sample 1, that is the last topic of today's lecture, statement of purpose, page number 155। हम एक यहाँ पे सैम्पल देखेंगे कि कैसे हम लोगों को लिखने का है SOP। इसका मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे दिया नहीं है बट मैं आपको रिप्रेजेंट कर देती हूँ। एग्जाम में आपको ऐसा आएगा, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस टू ज्वाइन UK, ओके, दैट इज ब्रिटेन यूनिवर्सिटी फॉर परसुइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स। तुमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स करने का है और यूके में, यूके की एक यूनिवर्सिटी है उसमें आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने का है। सो लेट्स सी first paragraph. Pursuing a course of mechanical engineering will enable me to progress in a field which started as a dream. The genius of this dream was a personal experience at the age of 10. We were on a road trip in my dad's car. Without any warning, the engine ceased, and with it, my dreams for an exciting holiday too. My dad hopped out of the car and opened the bonnet. I was right on his tail, watching him work on the engine, utterly fascinated. Soon the car was up and running, and I was in awe and admiration for my dad. I wanted to be just like him. My dad is an engineer, and I knew the seed of engineering had just been planted deep in my core. I'm eager to exploit my hunger for the course of mechanical engineering, and in particular मोटिव इंजीनियरिंग। तो ये फर्स्ट पैरा में आप देख सकते हो कि आपको रिप्रेजेंट करना है कि हाउ आई लाइक द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब मैंने कहा था आपको यहाँ पे आप अपने लाइफ का रियल इंसिडेंट दे सकते हो। सो एक दिन क्या होता है कि जब
यू हैव टू से कि मैं एक दिन रोड ट्रिप पे जा रहा था, वहाँ पे मेरे डैड का कार वो ख़राब हो गया। मेरे डैड ने जैसे कार बनाया, उनको देख के मुझे फील हुआ कि लाइक माई फादर हु इज़ ए इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सेम वे आई वन वॉन्ट टू बिकम द मैकेनिकल इंजीनियर लाइक माई फादर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैरा में आपको एक एग्जाम्पल से रिप्रेजेंट करना है वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कोर्स। Next para, second. Over the summer holidays of 2017, I undertook an internship at a bus and coach manufacturing factory in Pune. As an apprentice, I had a team of highly qualified engineers to guide me. The teamwork, the zeal, the expertise displayed was an enormous learning point. The experience enriched my understanding of how vehicles work. This internship gave me an insight into the day-to-day challenges faced by an engineer. I also learned the basics of lathe and milling machines and was able to work a bolt with threads on it. Utilizing this machining skill, I was able to make my own fidget spinner. So आपको second paragraph में represent करना है that why specifically you want to join this course or this area. तो आप बता सकते हो कि मैंने internships वगैरह किया है, मैंने कैसे मैंने internships वगैरह करके इस फील्ड के बारे में गुड नॉलेज इकट्ठा किया है कि आगे मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज़फुल होगा। स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखना, मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मेट ऑफ द एसओपी सिखाया जिसमें मैंने 6-7 पैराग्राफ कैसे लिखने हैं ये रिप्रेजेंट किया था, याद है? इसको आप ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हो। मतलब फर्स्ट पैरा में तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना ही, अपने फैमिली का एक एग्जाम्पल देना है, उसके साथ आप चाहिए तो अपना इंटर्नशिप पहले वाला वो जो इंटर्नशिप मैंने बोला था जो आप फोर्थ पैराग्राफ में लिख रहे थे वो आप सेकंड पैराग्राफ में भी लिख सकते हो जैसे ये दिया, तो आप आगे पीछे करके लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड पैरा, आई स्टडी इन अ स्कूल दैट लेज अ ग्रेट एम्फोसिस ऑन co-curricular activities, especially sports. अब इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है दैट थर्ड पैरा में दैट यू आर नॉट ओनली गुड इन स्टडीज बट ऑल्सो यू आर वेरी गुड इन अदर करिकुलर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स. I excelled in hockey and swimming. In hockey, I have been in the school A team right from the age of 7. This association with the hockey has improved my hand-eye coordination with my ability to stay focused in any given situations, attributes essential for a successful engineer. Outside of school, I picked up the sport of cricket, which initially began as a family outing. Later on, I immersed myself in the sport. Cricket has helped me build on my levels of concentration. Concentration comes out of a combination of confidence and hunger. These are the words that every engineer should live by. Have insatiable hunger to be the best in design, research, and manufacturing of machines and their subsystems. So here you can write that as a student, you are not only good in engineering but also other curricular activities like hockey, which had taught that how to be strong in your life and thus you want to become this engineer. Also तुम यहाँ पे कुछ और लेवल्स में भी बता सकते हो कि तुम क्रिकेट हॉकी के कौन कौन से लेवल्स पे गए थे खेलने और उससे तुमने क्या सीख लिया कि तुमको कंसंट्रेशन रहना चाहिए, और कंसंट्रेशन किस चीज़ का रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस और हंगर ऑफ लर्निंग मोर एंड मोर। तो इस तरीके से आप कोटेशन प्रोवर्ब्स डाल के भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ प्लीज सी of 155 page number. We run a daily feeding program in our temples where everyone is welcome. I have taken part in these services nearly every weekend. I have also taken part in several other community service ventures such as planting trees in a bed to reduce deforestation. I also participate in epilepsy walk in order to collect money to help in the treatment of people who can't afford the medical care required to treat एपिलेप्सी। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो कि नॉट ओनली एजुकेशन बट ऑल्सो यू हैड डन सो मेनी एनजीओ वर्क्स ऑल्सो, मतलब कहीं ट्री प्लांटेशन में आप हेल्पफुल किया, कहीं पे आपने डोनेट किया, कहीं पे आपने कोई वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को देखा तो आप हेल्प करने गए, कोई पुअर पीपल को कैसे हेल्प किया, किसी को जैसे डिजीज़ है एपिलेप्सी वगैरह डिजीज़ है तो उनके लिए आपने क्या हेल्प किया, व्हाट एफर्ट्स यू हैड डन, व्हाट मेडिकल फैसिलिटीज़ you try to bring
forth to these people, उनके लिए कुछ डोनेशन किया क्या या कलेक्शन किया क्या मनी। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नॉट ओनली यू आर वेरी गुड इन योर एजुकेशन दैट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, बट you are very social also, and you are doing the community work also, and creating a good impact in your society. Okay, so in this way you have to write 156 page number. Can we please turn and see? Yes, fifth para. I believe that I am a suitable candidate for the course since the subjects I have picked for my undergraduate course in mechanical engineering, namely physics and mathematics, have exposed me to high levels of critical thinking. Okay, so आपको यहाँ पे लिखने का रहता है कि like a candidate, like what are the efforts that you have to do, और ये undergraduate course करना, मैकेनिकल कोर्स करना स्पेशली कितना इंपॉर्टेंट है, और तुम कौन से सब्जेक्ट में यू आर वेरी गुड एट, और जब तुम 11th-12th में थे तो कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग था लाइक फिजिक्स एंड मैथ्स, और कितना लेवल तुम्हारा हाई था, कितना परसेंटेज आया। यहाँ पे कुछ आप अपने बारे में अच्छा लिख सकते हो, दैट विच सब्जेक्ट यू लाइक द मोस्ट हैव एक्सपोज्ड मी टू हाई लेवल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। थ्रू आउट हाई स्कूल्स आई हैव बीन अ प्रैक्टिकल थिंकर. My passion for physics has helped my analytical skills. Mechanical engineering specifically apply fundamental maths and physics laws to find solutions of machines which we use every day. तो यहाँ पे आप represent कर सकते हो that in mechanical engineering, as I am going to do, my main target is to main focus on not only physics but also maths. And in physics, of course, because I love to find the solutions स्पेशली ऑफ द मशीन्स इन डे टू डे लाइफ। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ में व्हाई यू वांट दिस यूके यूनिवर्सिटी टू स्टडी इन, ये आएगा आपका लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ। सो लास्ट में क्या लिखना है? आई बिलीव, लास्ट पैराग्राफ, आई बिलीव दैट द यूके इज द आइडियल लोकेशन फॉर माई चॉइस ऑफ स्टडी as it is known to have the best universities for engineering offering top notch, it means high level facilities in research, design and manufacture. The UK has some of the greatest companies which pioneered automotive engineering to what it is today. For example, Aston Martin and Jaguar Land Rover, these are the बाइक्स एंड कार्स नेम आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा. आई होप टू सिक्योर एडमिशन दैट विल प्रोवाइड मी विद द अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल माई ड्रीम. तो यहाँ पे आपको लास्ट में बताना है कि वाई यू वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन दिस यूके यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो फिर वो लिख सकते हो आप लोग. ठीक है, कि वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन द योर यूनिवर्सिटी. कितना यूनिवर्सिटी तुम्हारा अलग है, टॉप नॉच, इट मीन्स हाई लेवल का है, जहाँ पे बहुत हाई लेवल के स्टडीज़ होते हैं, रिसर्च होता है, डिज़ाइन होता है ऑटोमोबाइल मशीन्स का, और मैन्युफैक्चर भी होता है. इसलिए ये यूनिवर्सिटी सबसे अलग है, नॉट लाइक others. So that's why you want to be the part of student of this university. और ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे बहुत बिग कंपनीज आके वर्क करती है, स्पेशली जैगुआर लैंड रोवर आपको मालूम ही है, ऑस्टन मार्टिन कार्स एंड बाइक्स आपको पता ही है. तो इसलिए यू आर मोर एक्साइटेड टू गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज टू फुलफिल माई ड्रीम्स. इस तरीके से आपको एंड करना है. सो दिस इज द SOP विच वी आर स्टडी टुडे टू नो that how, if we want to take the admission in the other college, how we have to prepare the SOP. So by this we come to the end of this lecture. The remaining sample 2, that of statement of purpose, we are going to do in our next lecture. And also we are going to complete icebreaker questions and brainstorming questions, where we are going to solve how the questions are coming in the exam of statement of purpose and how to solve. We will more learn in the next lecture. Till then, read the chapter very carefully, try to write down the SOP by your own self. However, we are going to do more learning in the next lecture, and enjoy learning. This is Garima May signing off. Stay home, stay safe.